Hello everyone, I am Tulsidas Patil with my friend Prathamesh Barve welcomes you all to Engineering Tunes where engineering made easy. So in the previous video we have understood the concept of function and in this video we are going to see the concept of structure. So structure क्या होता है ये अपने Python में नहीं पढ़ा था. Okay, so let's understand what the structure is. So structure is a user defined data type which is used to declare the elements of different data type. मतलब तुम्हें एक साथ अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को डिक्लेयर करना है और उसको कलेक्टिवली एक ही नाम से यूज करना है, देन गो फॉर स्ट्रक्चर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स सिंटैक्स. सो व्हाट सिंटैक्स इज सेइंग? Syntax is just a struct, keyword struct and structure name and in curly brackets declare those variable. Remember I am saying declare those variable. You can't define the variables over here. You just need to declare the variable. ये structure है, function नहीं है. And then ends with semicolon or you can write down the object name here also. Done. For example, here we are declaring a structure struct student and in this structure we declare certain variables and we created the object over here also. And if you don't want to create object over here, you can create the object in the main function also. So let's understand the structure in more better way with the help of code. So this is the CPP code for structure. So after the header file we are declare the structure over here struct student. एक स्ट्रक्ट अपना एक स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट नाम का और जिसके अंदर मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया रोल नंबर्स एंड मार्क्स. सो रोल नंबर एंड मार्क्स की जस्ट डिक्लेयर हो गए हैं अभी. ओके, इसका मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है. मेमोरी एलोकेशन तब होगा जब अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट एस. सो अब ये स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बन गया है स्टूडेंट टाइप का एस, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है रोल नंबर एंड मार्क्स. सपोज s कॉमा s1 s2 या फिर प्रथमेश तुलसीदास इंजीनियरिंग ट्यूट्स z वगैरह कुछ भी लिखते तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. लेट्स से इट्स नेम इज z एंड वो भी यूज कर सकता था दो वेरिएबल्स को, लेट्स से rn एंड मार्क्स. सो जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी ही इसकी कॉपीज बनती हुई जाएगी. Then something resembles to class in Python. If you understood the concept of class very nicely in our previous course. So similarly एक प्रोटोटाइप बन गया और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन उसको यूज करते हुए जा रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का सिर्फ एस बनाया था. सो लेट्स रिमूव द जेड. ओके, एंड सी आउट एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट. यूजर विल एंटर सर्टेन रोल नंबर्स. लेट्स से यूजर ने एंटर किया रोल नंबर 5. उसको अपन कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एस डॉट रोल नंबर. इन दिस वे यू कैन एक्सेस द elements of structure with the help of its object. So s dot roll number, that is this one. यहाँ पे कौन आ जाएगा? नया रोल नंबर, let's say 34. Then s dot marks, let's say 84. यहाँ पे आ गया. Okay, अगर मैं यहाँ पे z भी लिखता है z dot roll number रहता तो यहाँ पे मार्क्स आ जाते. z dot marks यहाँ पे मार्क्स आ जाते. Done. So in this way we can take the input and store it by using the structure variable. Let's print it. See out roll number. कौन सा रोल नंबर प्रिंट करना है मुझे? ये. और इसको कैसे एक्सेस करेंगे अपन? With the help of its object s dot roll number, similarly s dot marks. Okay, and one more thing, size of structure, just take care of this thing. This is the most important thing. Size of structure is the size of all the elements of structure, that is summation of all the elements of structure. That is integer roll numbers, इसके लिए 4 bytes लगेंगे, integer marks इसके लिए 4 bytes, so 4 plus 4 equals to 8. And size of is an operator which is used to calculate the size of particular thing. If you want to calculate the size of integer variable, let's say s z जो भी है, so simply write down size of in bracket int or int का n type का है तो write down the size of n. Okay, so let's execute this part and let's understand how structure is executed. So here I got 0 errors and 0 warning. Enter roll number of student, let's say 34. Enter the marks 84. Roll number is 34, marks is 0, size of structure is 8 because 4 bytes for this, 4 bytes for this. Done. So this is the structure. Now let's understand the concept of union and then we will see the importance of structure. Okay, so let's move to the concept of union. Union. What is union? Union is a user defined data type which is used to declare the different data types element which is similar to structure. Its syntax भी अगर अपन देखेंगे तो क्या लिखा है? कीवर्ड यूनियन, देन यूनियन नेम, देन डिक्लेयर द वेरिएबल्स ओवर हियर.
सिमिलर सिंटैक्स एंड सिमिलर एग्जांपल सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में? तो डिफरेंस ये है कि साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज द समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, वेयर एज द साइज ऑफ यूनियन इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इन द यूनियन। सो यूनियन में जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा उतना ही यूनियन का साइज रहेगा, और उतना ही साइज, उतना ही मेमोरी शेयर्ड होगा सारे यूनियन के वेरिएबल्स में। So let's understand union more better way with the help of code. So as we know that structure is union is very much similar to structure. So instead of struct we are having union keyword over here, union, and that's it. Okay, so let's execute this part. Enter the roll number of student, let's say 34. Enter the marks 84. Roll number 84, marks 84, size of object is 4. ऐसा क्यों आया? So let's get back to the code. And over here we can say that size of union is the size of largest element. Both elements are of same data type, so size of union is 4. So एक ही memory allocate हो जाएगी for both the variables. Done. तो क्या किया तुमने? Enter the roll number of student 34 आ गया यहाँ पे. Okay, s dot roll number कहते तो 34 आ जाता। Okay, better way we are printing this. Just write down the cout and let's print this roll number. Okay. And if I am writing like this, roll number is s dot roll number, I will get the output 34. If I am writing like this, enter the percentage of student, let's say 84, and if I am printing this, likewise this line over here, cout marks. So इसी जगह पे जो मेमोरी अलोकेट हुई थी रोल नंबर के लिए, उसी पे क्या आ जाएगा? मार्क्स जो है 84, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग दैट मार्क्स इज इक्वल्स टू 84. देन अगेन वी आर राइटिंग द सेम थिंग, दैट इज रोल नंबर इज s डॉट रोल नंबर. अब s डॉट रोल नंबर कौन सी मेमोरी एक्सेस कर रहा है? दिस वन. यहाँ पे वैल्यू कौन सी है? 84. सो आई विल गेट द आउटपुट 84. s डॉट मार्क्स अगेन इट इज एक्सेसिंग सेम मेमोरी, so I'll get the output 84. So let's execute this part. So when I execute this, enter roll number, let's say 34. 34 आ गया यहाँ पे. Enter the roll number is 34. Okay, done. So enter the percentage of student, let's say 84, and marks is 84, and here we are getting roll number is again 84, marks is 84. So got the concept of union. So ये होता है structure और union. So whenever you are having the restrictions on memory usage, go for union, ताकि एक ही memory share रहे सारे resource के पास. अगर तुम्हारे पास ample amount of memory है, then go for the structure. Now let's understand the importance of structure. Okay. So let's do the complex program over here. That is not complex program, little big programs. Okay, so I want to manage the details of all the records of a student in a class. ठीक है, सो मुझे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करना है, और फिर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड, अपडेट, डिलीट, सर्च वगैरह वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो लेट्स डिस्कस द आउटपुट ओवर हियर फर्स्ट. सो सबसे पहले अपन पूछेंगे एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास. लेट्स से देयर आर 2 स्टूडेंट इन अ क्लास. तो उसने मुझे पूछना चाहिए एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, लेट्स से 2, देन स्टूडेंट नेम, लेट्स से ABC, then student percentage 84, then enter the total number of backlog, let's say 1, enter the student roll number. Okay, that's for the second student. Okay, so यहाँ पे मुझे ऐसा आना चाहिए enter the details for second student. Okay, so enter the roll number again, that is roll number, let's say 3, again the name, let's say PQR, enter the student percentage, let's say 94, number of backlog, let's say 2. Okay, so enter 1 to add student in a class, 2 for search, 3 for update, 4 for display. सबसे पहले display कर लेते हैं 4. So here you can see that there are 2 students, record of student 1, record of student 2, जो भी अपने डिटेल्स एंटर किए थे यहाँ पे आ गए हैं. डन. और उसके बाद मुझे ये सारे ऑपरेशंस भी उसके ऊपर परफॉर्म होने चाहिए. सो ऐड बोलते से ही मुझे तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे ऐड होना चाहिए. सर्च खोलने के बाद उसने पूछना चाहिए कि एंटर द रोल नंबर टू सर्च, एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए. अपडेट करने के बाद अगर उसने पूछना चाहिए कि एंटर द रोल नंबर टू अपडेट, और रोल नंबर सर्च हो गया अच्छी तरह से, तो पूछना चाहिए कि नया नेम एंटर करो, नया मार्क्स, नंबर ऑफ बैकलॉग्स एंटर करो. तो ये है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. डन.
और अभी आपको अगर ऐसा लगता होगा कि स्ट्रक्चर इज नॉट दैट मच ऑफ यूजफुल, ट्राई टू कोड योर प्रोग्राम विदाउट द स्ट्रक्चर। और विद स्ट्रक्चर कैसे कोड करना है देखते हैं। So this is the structure. So after header file we declared a structure in which we are having its roll number, name, percentage and backlog. So one prototype is defined or declared we can say, and we have created student of 60. That means इस क्लासरूम स्ट्रक्चर के अपन ने 60 ऑब्जेक्ट बना दिए, जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट ऑफ 0. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज माय स्टूडेंट ऑफ 0, जो भी एक्सेस करेगा नंबर, रोल नंबर, नेम एंड दिस थिंग्स. सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, स्टूडेंट ऑफ 1, वो भी क्या एक्सेस करेगा, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, बैकलॉग. सो इस स्ट्रक्चर की 60 कॉपीज बन चुकी है अभी. डन. और हर कॉपी में अपन नए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. सो लेट्स मेक ए यूज ऑफ दिस. सो as we know that every execution starts with main function. So in our main function we are having variable n to store the number of students. Okay, जो यूजर देने वाला है, अपने को तो पता नहीं क्लास में कितने बच्चे हैं. rn that is for roll number, सर्च करना है for search update के लिए. Okay, then we are asking enter the number of student in class. Let's say user enters 2. Then scene n पे आ गया वैल्यू 2. Then integer r equals to 0. Then choice garbage value. Then again r equals to 0. Yes, value override होगी 0 से 0. Condition is true. And then we are asking enter the student roll number to the user. So student ने enter किया roll number 2. तो ये 2 कहाँ पे स्टोर होगा, तो student i of roll number. student i मतलब कौन, i का वैल्यू है 0. So student 0 of roll number पे कौन आएगा, रोल नंबर एंटर किया होगा 2. उसका नाम एंटर करो, लेट्स से नेम इज राम. उसके परसेंटेज एंटर करो, लेट्स से 98. उसके नंबर ऑफ बैकलॉग एंटर करो, लेट्स से 1. डन. फिर से क्या होगा, अगेन कम्स टू द लूप, i plus plus, value of i becomes 1. Again it asks enter the student roll number. Let's say roll number is let's say 3. आ गया student 1 of roll number. उसका नाम let's say रोहन. उसके परसेंटेज let's say 84. number of backlog let's say 2. again i plus plus, value of i becomes 2. i less than n, condition false, it comes out of the loop. अभी मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट बन गए. Done. Now enter the, so we display the menu. So menu driven code है. अभी ये बातें तो पता ही चल गई कि menu driven code enter 1 for this, 2 for this, 3 4 5 for exit. और choice enter करो. Let's say user ने enter किया 1, वो आ गया choice के अंदर 1 and switch choice. choice है 1, so case 1 execute होगा. उसको अपन कॉल कर रहे n equals to add record, मतलब अपन फंक्शन add record कॉल कर रहे हैं, जो कुछ तो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर होगी n के अंदर. और उसको अपन क्या पास कर रहे हैं, n, that is nothing but the number of student. So let's come to the add record function. So at the starting we are having add record function, add integer n. अब इतना बोलते से क्या होगा, integer n, this n is for this function. This is called as the local variable. अब local variable क्या है, global variable क्या है, this is nicely explained in our previous Python course. Okay, वो कोर्स देख लो, बहुत अच्छा कोर्स बना है. Okay, but everything is in Python language. Right? So एक नया वेरिएबल बन गया n. Okay, जिसको किसकी वैल्यू मिली, इस n की. So again it's having value 2. So what we are writing, C out enter the student of roll number and C in student of n dot roll number. n मतलब कौन, n of value is 2, so student of 2. So student of, let's say if this is 2, okay, इसके यहाँ पे आ गया नया रोल नंबर. लेट्स से न्यू रोल नंबर इज लेट्स से 8. उसका नाम लेट्स से स्वीटी एंड परसेंटेज लेट्स से 88. नंबर ऑफ बैकलॉग लेट्स से 3. सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड एट द स्टूडेंट 3 ऑफ बैकलॉग. देन एंड देन व्हाट वी आर रिटर्निंग, रिटर्न प्लस प्लस n. दिस इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ये क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट करेगा n को और बाद में n को रिटर्न कर देगा. सो n का वैल्यू कितना हुआ, 3. ये सारे ऑपरेशन इस n पे परफॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो वैल्यू रिटर्न करेगा 3. ये वैल्यू किसके पास जाएगी, उस फंक्शन के पास जिसने इसको कॉल किया था. सो लेट्स गो बैक टू द आवर मेन फंक्शन. यहां से कॉल हुआ था ऐड रिकॉर्ड, इसने वैल्यू रिटर्न कर दिया 3. वो वैल्यू मिली sn को एंड दिस n इज अ पार्ट ऑफ मेन फंक्शन. सो यहां पे वैल्यू आ गई 3. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपडेट हो गए.
Now got this? So similarly, so यहाँ पे break, then if choice is 2, अब choice 2 क्या है, सर्चिंग के लिए enter the roll number to search, वो आ गया RN पे, let's say मुझे roll number 3 सर्च करना है, so RN value is 3. Again we are calling search record function, उसको पास कर रहे हैं n. ये n अभी यहाँ से हट ही गया है, क्योंकि जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा उसके वेरिएबल्स को वैल्यू उसकी मेमोरी डी अलोकेट की जाती है. सो मेमोरी से हट गया वो, एंड वी आर पासिंग 3 एंड Rn का वैल्यू वो भी है 3. सो Rn सर्च रिकॉर्ड फंक्शन कॉल होगा. एंड बस अभी इसी तरह से बाकी के भी फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल सर्च रिकॉर्ड, यहाँ पे अपन एक वेरिएबल i डिक्लेयर कर रहे हैं, सो नया वेरिएबल बन गया i. जैसे ये this i is different, this i is for main and this i is for this search record function. So आपको भी अगर कोड समझना है ना, ओके, बेटरली आई सजेस्ट वीडियो पॉज करो और आगे का कोड खुद करके देखो. इस हिसाब से वेरिएबल बनाना और चेक करने की क्या हो रहा है. सो तुम्हें पता चलेगा कि कंपाइलर किस हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और ये पता चल गया कंपाइलर किस हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, देन यू कैन कोड योर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली वेरी नाइसली. नॉट ओनली दिस थिंग्स, you can understand the errors very nicely. Done? And like this I, our n and rn, again new copy is created. So we are having variable n over here, variable rn over here, and this n is having value of this and 3, rn को भी value मिल गई है 3. Done? And then we are checking I equals to 0, इसका value बन गया 0, less than n. Okay, rn student I of roll number है क्या, चेक करो. अगर है तो ये सारे डिटेल्स डिस्प्ले कर दो, अगर नहीं है तो क्या करो, i++ नए वैल्यू के साथ चेक करो. तो सबसे पहले इस रिकॉर्ड पे चेक होगा रोल नंबर 3 है क्या, नहीं है. यहाँ पे चेक होगा रोल नंबर 3 है क्या, हाँ है तो क्या करो, स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट आई ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट 1 ऑफ रोल नंबर को डिस्प्ले करो. ये सारे डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके, अगर किसी के साथ मैच नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ i बिकम्स n एंड वी आर प्रिंटिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड इन डेटाबेस एंड रिटर्न -1. डन. सो ये सारी चीजें हो जाएगी यहाँ पे. एंड हियर वी आर, इफ सर्च इज सक्सेसफुल वी आर रिटर्निंग i, एंड इफ सर्च इज नॉट सक्सेसफुल वी आर रिटर्निंग -1. अब इस सर्च के लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है अपडेट में, क्योंकि जैसे अपडेट फंक्शन कॉल होगा और कंट्रोल गोज बैक टू द अपडेट फंक्शन, और अपडेट में फिर से n rn बन जाएंगे, एंड फिर से मुझे रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर नंबर को अपडेट करना है. तो सबसे पहले उस रोल नंबर को ढूंढना पड़ेगा कि डेटाबेस में है कि नहीं. उसके लिए मैं फिर से कोड क्यों लिखूं, पहले एक बार लिखा है ना फंक्शन. सो लेट्स यूज दिस फंक्शन. सो आई एम राइटिंग i equals to 0 and i equals to search record n rn. उसको ये वैल्यू पास करेंगे. अगर if it is successful then it will return i मतलब क्या, ये मुझे कौन से ऑब्जेक्ट में इसकी रोल नंबर सर्च हुआ है, whether the i value is 0, i value is 1, 2, 3, 4, 59 तक के कौन सा वैल्यू i का है, जो भी सक्सेसफुल सर्च वो रिटर्न हो जाएगा, एंड दैट वैल्यू विल बी catched by this variable I. Okay, this variable I is for now update function. So and if I double equals to -1, इसका मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड. जैसे अपन ने सर्च में लिखा है कि if n equals to 0 स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड एंड रिटर्न -1. सो अब समझ में आया कि I और -1 क्यों लिखे. सो इफ इट इज -1 वी आर डायरेक्टली प्रिंटिंग रिकॉर्ड नॉट फाउंड. एल्स मतलब अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो क्या करो, एंटर न्यू रिकॉर्ड, और नए रिकॉर्ड को किसके साथ स्टोर करो, स्टूडेंट ऑफ i, मतलब उसी वैल्यू पे नए वैल्यू स्टोर हो जाएंगे. डन. सो दिस इज अपडेट फंक्शन, एंड लास्ट फंक्शन रिमेन, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्ले फंक्शन. सो डिस्प्ले फंक्शन, दिस इज द डिस्प्ले रिकॉर्ड फंक्शन. नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गए, 0 से लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट तक के जाओ और सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक एक करके डिस्प्ले कर देगा. डन. सो दिस इज आवर कोड. सो लेट्स कम टू द मेन फंक्शन. सो इस हिसाब से मेरा पूरा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. केस 1 2 3 4, और जैसे यूजर 5 प्रेस करेगा विल कम आउट ऑफ द लूप, एंड थैंक्स फॉर यूजिंग आवर प्रोग्राम. सो इफ यू वांट विल एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन. सो वी हैव एडेड 2 स्टूडेंट इन आवर डेटाबेस, एंड लेट्स चेक दिस फंक्शंस. सो एंटर 1. सो एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 8. एंटर नेम, दैट इज Sweetu, and then percentage 88, and number of backlogs are 3. Okay, so I hope records are added, and how can we check this with the help of display function. It is a 4, and the ये देखो Sweetu add हो गई यहाँ पे अच्छी तरह से. Done. And let's say to search, मुझे particular record search करना है, enter roll number to search. Let's say roll number is 3, and roll number is 3, and it is Rohan 84, number of backlog is 2. Yes, very nicely working. And update, let's say choice is 3.
enter the roll number to update. Let's say roll number 3 कोई रोहन कोई update कर देता है. So what we are saying, enter the new record for the student with roll number and enter the student name. Let's say Roshan and percentage 92 and number of backlogs are 0 and let's display the database. So here we are having instead of roll number 3 रोहन की जगह रोशन आ गया, परसेंटेज भी बन गए और नंबर ऑफ बैकलॉग्स भी 0 आ गए. अब प्रेस करते हैं 5 और कोड को कर देते हैं इंट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. प्रोग्राम थोड़ा बड़ा था लेकिन आई होप मजा आया होगा. और प्रोग्रामिंग यही होता है, अच्छी तरह से बड़े प्रोग्राम करो एंड अपना माहौल करो मस्त अच्छी तरह से. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन रीच दैट let's talk at engineeringtunes.com or you can use discussion section over here. And in the next video we are going to understand the concept of function call by reference. function call by value अपन ने पढ़ा था, reference क्या है, अभी मेमोरी लोकेशन वगैरह शेयर करेंगे, फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे. डन. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग ट्यूट्स वेयर इंजीनियरिंग मेड इजी.